Hello everyone, welcome to the most entertaining, exciting and thrilling session of maths classes from 9 to 10th. And I am your super maths teacher Ashutosh Singh. At Educator, we always empower our learners as how to think, not what to think. If you want to experience the same, just subscribe our YouTube channel. This is our YouTube channel, Educator YouTube channel. You can like it, share it and subscribe it, okay? And don't forget to hit the bell icon in order to get the latest updates. So let's start. Topic for the day is polynomial part 2, okay? So let's see. Yeah. Graphical representation. Okay, so we are going to learn about the parabola, what is the parabola and all, and the graphical representation of the quadratic and the cubic, okay? So the representation, the representing equation of a graph, okay? So let me tell you first. For example, if we have a linear equation, okay? If we have a linear equation, let's suppose A equals to y equals to ax plus b, okay? This is the linear equation. Why it is a linear equation? It is a linear equation because the power of x is 1, okay? The power of x is 1. The degree of x is 1, or you can say that the power of x is 1, or the exponent of x is 1, okay? Okay, so an equation can be represented as a graph on the Cartesian planes. Each where is a point on the graph represent the x and y coordinates of the point, and that satisfy the equation, okay? So let's see what does it mean. What is the meaning of Cartesian planes? Okay, these are the 4 quadrants. This is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and the next one is the fourth quadrant, okay? These are the Cartesian plane. The first plane, xy plane. This is x-axis, positive x-axis, okay? This is positive x-axis, okay? Positive x-axis. And this one is the negative x-axis. The negative x-axis. And this one is the minus y, which is the negative y-axis, and this one is positive y-axis. So this is the plane, okay? This is the plane, yx plane, okay? Yx plane, okay? And this one is also the yx plane, or you can say that the x1 plane, but there is a difference. The difference is, let's suppose there is a point. Let's suppose there is a point in this plane, xy plane, okay? The point is lie between in the plane which is made with the positive x-axis and with the positive y-axis, okay? Let's suppose there is a point. Let's suppose there is a point 2, 3, okay? So what we are going to do is, we are taking 2 as positive and 3 as positive. Why? Because this 2 represent the coordinate of x-axis, and this 3 represent the coordinate of y-axis, which means, इसका मतलब क्या है कि अगर ये x क्या है, ये जो फर्स्ट वाला होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला होता है ये रिप्रेजेंट करता है y को, ओके? तो इसका मतलब क्या है, अगर 2, 3 मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब ये है कि अगर मैं एक सीधी लाइन को गिराऊँ यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ तक, तो यहाँ से ओरिजिन, दिस इज़ दी ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, ओके? जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, ओके? तो यहाँ से जो इसकी जो दूरी होगी, यहाँ से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2, ओके? एंड व्हाट अबाउट दी y? द वैल्यू ऑफ y इज 3. इसका मतलब क्या है कि ये जो लंबाई है, जहाँ से ये इस पॉइंट से मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं इस तरीके से इसको कुछ एक्सटेंड कर दूँ यहाँ से, तो इसका जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 3, ओके? और ये भी कितना होगा, 3. क्यों? क्योंकि ये जो लंबाई है और ये वाली लंबाई जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है?
जैसे कि मैंने इस तरीके से मान लो कुछ किया, एक लंबाई ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, दोनों क्या है सेम हाइट की हैं। अगर इसकी लेंथ क्या है 3 है तो इसकी लेंथ भी 3 होगी ना, ठीक। तो इस तरीके से इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है 3, और इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी है 3, ठीक। और नीचे वाले की लेंथ कितनी है 2। ये जो है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली जो लेंथ है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 2,3, ओके, x, y, okay. And what are the Cartesian planes? These are the Cartesian planes, the xy plane, the minus xy plane, okay, this one. Let's suppose there is a point, this is a point, there is a point minus 2,3, okay. इसका मतलब क्या है? What does it represent? It represent कि अगर मैं यहाँ से origin से यहाँ दूरी पे आऊँ, पहले क्या आता है हमारा -1 आता है, फिर आता है क्या -2, ओके। लेट मी क्लियर आउट, ठीक। पहले आएगा -1, देन -2, देन -3, ओके। एंड अप टू आगे आगे बढ़ता जाएगा, फिर -4 आएगा, -5 आएगा, -9 आएगा, ठीक है, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा माइनस में, ठीक। तो -2 का मतलब क्या है, ऑरिजिन से यहाँ की जो लेंथ है वो, ठीक। तो ये कितनी है -2, माइनस व्हाट डज इट माइनस रिप्रेजेंट? माइनस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ओके। 2 इज द लेंथ एंड माइनस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 इज द लेंथ एंड व्हाट डज इट माइनस रिप्रेजेंट? माइनस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ओके। इट इज ऑरिजिन की इधर वाली डायरेक्शन को हमने प्लस बोल दिया, ठीक, और इस ऑरिजिन की इधर वाली डायरेक्शन को हमने माइनस बोल दिया, ठीक। तो -2 ये वाली हो गया, और ये क्या है 3। तो हम -2,3 एक पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई वो कितनी हुई? 2 ही हुई। दूरी कितनी है? 2 है। और माइनस के रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली डायरेक्शन, ऑरिजिन से इधर की डायरेक्शन, ओके। एंड 3 क्या है? लेंथ, ओके। ये क्या है? ये x कोऑर्डिनेट है, और ये भी क्या है? y कोऑर्डिनेट। पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर हम y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है? 3। तो y कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब क्या है? y कोऑर्डिनेट 3 इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है वी आर गोइंग टू टेक अ पीस ऑफ लेंथ विच इज इक्वल्स टू 3, ओके, इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, ओके। पॉजिटिव y डायरेक्शन में हमने कोई लेंथ का एक पीस लिया, उस पीस को अगर हम चेक करेंगे स्केल से तो वो कितने मीटर, जो भी मीटर है या सेंटीमीटर है, तो वो क्या है, उसकी लेंथ कितनी है? 3 यूनिट्स है। आप यूनिट्स मान सकते हैं, अगर मीटर और सेंटीमीटर नहीं ले रहे तो यूनिट्स में आप, अगर कोई भी यूनिट नहीं होती तो हम यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द Cartesian coordinates and the Cartesian planes, okay. So this is the first one. Let's see one more example. For example, okay, so we have 4 planes, the first one, the second one, the third one, and the fourth one, okay. We have 4 planes. This is plus x-axis, this one is minus x-axis, this one is plus y-axis, and this one is minus y-axis, okay. Let's suppose if I have a point 5,3, okay, 5,3, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक। This one is the Cartesian coordinate. The first coordinate represent the x coordinate and the second one represent the y. Okay. जो फर्स्ट वन है वो x को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वन है वो y को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। x को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। इसका मतलब क्या है कि इस ऑरिजिन से, दिस वन इज द ऑरिजिन, दिस वन इज द ऑरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0, ओके। दिस वन इज द ऑरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन इज 0,0। इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है
एक्स एक्सिस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, ओरिजिन से, यहाँ से, ठीक। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कितना आगे बढ़ेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, एक्स के बाद 1 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से 5 आएगा, ठीक ठीक है। तो इस तरीके से 5 आएगा, ठीक। तो इतना हम आगे बढ़े, यहाँ से इतना आगे बढ़ गए। क्यों आगे बढ़ गए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 3, यानी हम वाई की तरफ हम 3 आगे बढ़ेंगे। तो ये वाई एक्सिस ये है और ये +3 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ये +5 है। देखो, तो ये 5 हो गया, ठीक। y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये हम ऊपर की तरफ 3 बढ़ेंगे, मतलब y की वैल्यू 3 लिखिए, इसका मतलब +3 का मतलब है y क्या है, पॉजिटिव y की तरफ हम 3 आगे बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, ओके। इसका मतलब यही है। तो हम यहाँ से, अगर यहाँ से हम 5 बढ़े, पहले 5 बढ़े x की तरफ, ठीक, और ये 3 आ गए y की तरफ, ओके। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है 5 है, तो इसके पैरेलल वाली लेंथ भी कितनी होगी, 5, ठीक। अगर ये वाली लेंथ कितनी है, 3 है, अगर ये वाली लेंथ कितनी है, 3 है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 3, ओके। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंड वन मोर थिंग you need to remember, the thing is, this is plus x, this is plus y, this is minus x and this is minus y। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके ऊपर, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर, प्लस x एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ, प्लस x एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ क्या होगा, हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x, अगर ध्यान रखना है इसको, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, देन देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट, द वन कोऑर्डिनेट इज द x कोऑर्डिनेट एंड द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, ओके। सो इसको मैंने नाम दे दिया सपोज x1, 0। द वैल्यू ऑफ x1 कैन बी 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ओके, कुछ भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मैंने x1 दे दिया, x1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 0 इज दी y कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट होता है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। सो द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 0, ओके। एंड लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग द पॉइंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, सो you have to remember one thing, in the direction of positive y-axis, the x coordinate is 0 and we have a positive y coordinate, okay। इसको y1 दे दो, y2 दे दो, कुछ भी नाम दे दो, it's totally depend on you, okay। So अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, if I am taking a point in this line, okay, इस लाइन के ऊपर लेता हूँ, ओके, इस वाली लाइन के ऊपर, तो क्या होगा कि जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा एंड द y कोऑर्डिनेट इज y1, ओके। द वैल्यू ऑफ y1 इज मे बी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट्स, और यू कैन टेक एनीथिंग, ओके। द वैल्यू ऑफ y1 एक्सेप्ट इन्फिनिटी। एंड इफ आई टेकिंग अ पॉइंट, लेट्स सपोज हियर, सो क्या होगा, -x1, 0, okay। The first one represent the x coordinate and the second one represent the, this is, and the second one represent the, and the second one represent the y coordinate। The y coordinate is 0, y coordinate is 0, y coordinate की वैल्यू 0 क्यों है, y coordinate की वैल्यू 0 इसलिए है क्योंकि वो x एक्सिस पे है, ठीक है। अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो एक्स एक्सिस पे होगा, भले ही वो पॉजिटिव हो, भले ही वो नेगेटिव हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ओके। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और x1 उसकी लेंथ है, ठीक, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ये।
So next one is, let's suppose if I have a point here, तो 0, -y1, okay. तो ये y axis पे है, I have a point in the direction of negative y axis, okay. किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव y axis पे. तो this one represent the x coordinate and the second one represent the y coordinate. So because it is in the direction of y axis, so the value of x coordinate is 0 and the value of y coordinate is -y1. माइनस रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन. अगर मैं इसको प्लस डायरेक्शन नाम दे रहा हूँ ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को माइनस बोल दिया, ठीक है. और y1 रिप्रेजेंट दी लेंथ, ओके. इट कैन बी 1 यूनिट, 5 यूनिट्स, 10 यूनिट, 100 यूनिट्स. इट टोटली डिपेंड ऑन यू and the question, okay. So this is all about the Cartesian plane and the Cartesian coordinates. And yeah, let's see. Geometric representation of a quadratic polynomial. Okay, so let's see. The graph of the quadratic polynomial is a parabola. Okay, so let's see. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये थ्योरी है. तो देखो क्या बोल रहा है. अगर मेरे पास सपोज कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ax² + bx + c, तो ये क्या है? मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है. क्यों इक्वेशन नहीं है? क्योंकि अभी तक मैंने इसे =0 नहीं रखा, इसलिए मैं इसको एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ. अगर मैं =0 रख दूंगा तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है. तो y = और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f(x), ओके. ये लिखने का तरीका है, ठीक है. ठीक, इसका मतलब क्या है कि x का मतलब क्या है कि एक फंक्शन ऑफ x, मतलब यहाँ जो कुछ भी लिखा रहेगा वो x के टर्म्स में होगा. देखो x के टर्म्स में तो लिखा है a के साथ x आ रहा है, b के साथ x आ रहा है. अब आप कहोगे c के साथ तो कुछ नहीं आ रहा, c के साथ भी x है, बट x की पावर क्या है? 0 है, ठीक है. तो x की पावर 0 इज़ 1, तो c × 1 इज़ c, ओके. तो इसके साथ भी x है बट उसकी पावर 0 है, ठीक. सो ये है, ठीक. अब ये क्या है? ये जो एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को, ठीक. अब पैराबोला देखो इस तरह का कुछ दिखता है. एक तो इस तरह का पैराबोला होता है, एक पैराबोला होता है इस तरीके का, ठीक है, यू टाइप का. सीधा यू हो गया, एक उल्टा यू हो गया, ठीक. तो दिस वन रिप्रेजेंट दी पैराबोला, ओके. अब क्या बोल रहा है? इट लुक लाइक्स अ यू विच ओपन्स अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. ये ऊपर भी हो सकता है, अपवर्ड की तरफ भी हो सकता है और डाउनवर्ड की तरफ हो सकता है, ठीक है. इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ ए. किसकी डिपेंड्स करता है? ए की वैल्यू पे. ए क्या है? ये वाला ए, ठीक. इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक. लेट्स सपोज अगर ए की वैल्यू क्या है? >0 है. अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, जो कि >0 है, तो कैसा बनेगा हमारा पैराबोला? ऐसा, ऊपर की डायरेक्शन में. इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ नेगेटिव, मतलब कि -1 हो गई, -3 हो गई, कुछ भी हो गया, -∞ को छोड़ के, ठीक है. तो कैसा पैराबोला बनेगा? नीचे की डायरेक्शन में, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके. दिस रिप्रेजेंट दी पैराबोलिक. तो ये पैराबोला बनेगा. अगर मैं इसके, मेरे को कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को पता हो, अगर मैं ड्रॉ करूँ ग्राफ पे, ठीक है, अगर ग्राफ पेपर में मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा, ठीक. और ये ऊपर की तरफ मिलेगा या नीचे की तरफ मिलेगा, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए. इफ द वैल्यू ऑफ ए इज >0, देन देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला इज अपवर्ड, एंड इफ द वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव, देन वी हैव अ डाउनवर्ड पैराबोला. डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, ओके. या ठीक. Okay, there is one more thing you have to remember. Okay, let's see. Okay, देखो, let's suppose ये क्या है? ये सपोज मेरा कोई ग्राफ पेपर है, ठीक है. ग्राफ पेपर होता है तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है. अगर मेरा पैराबोला इस तरीके से कट कर रहा है, पैराबोला मैंने बनाया,
इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ए क्या है? ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तभी तो ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस की 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़ बोल लो या रूट्स बोल लो। ठीक है, तो ज़ीरोज़ और रूट्स का मतलब क्या है? लेट सपोज एक्स इक्वल्स टू A1 पे कट कर रहा है, A1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, और यहाँ लेट सपोज ये एक्स इक्वल्स टू A2 पे कट कर रहा है, A2 की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हैं, 5 6 7 8। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर x की जगह मैं A1 रखूँ, इस वाले x की जगह मैं A1 रखूँ, तो वो मुझे इक्वल्स टू 0 मिल जाएगी वैल्यू। ठीक, अगर मैं x की जगह A2 रखूँ और इस वाले x की जगह भी A2 रखूँ, तो इसका मतलब मुझे 0 के बराबर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन ऑफ द रूट्स और द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन अदर टर्म्स। ओके, सो ठीक, तो क्यों 2 मिले, 3 क्यों नहीं मिले? 3 क्यों नहीं मिले? 2 इसलिए मिले क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है। x की डिग्री क्या है? 2। यहाँ x की डिग्री 1 भी है और यहाँ c के साथ x है, उसकी डिग्री क्या है? 0। बट हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं वी ऑलवेज गो टूवर्ड्स दी मैक्सिमम पावर। ओके, तो मैक्सिमम पावर की तरफ हम जाएंगे, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ठीक, तो मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसकी डिग्री क्या होगी? इस एक्सप्रेशन की और इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 2। ओके, जब डिग्री जितनी डिग्री होंगी उतने ही हमारे रूट्स होंगे। ठीक, और डिग्री जितनी डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप सबको ऐड कर दो, इसकी पावर 2 है और x की पावर 1 है और x की पावर 0 है, तो तीनों को ऐड कर दिया तो पता चला कि 3 आया, तो 3 डिग्री। डिग्री से मेरा मतलब है कि हम उसी को लेंगे जिस वाले x के ऊपर सबसे ज़्यादा पावर होगी। इस वाले x के ऊपर 1 है, इस वाले इसके साथ जो x है उसकी पावर 0 है, तो इसके x की पावर 2 है, तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री हुई वो कितनी हुई? 2। तो जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने मैक्सिमम रूट्स होंगे। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पैराबोलिक कंसेप्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Number of zeros. Okay, so let's suppose we have, I am going to take example of a linear equation. Okay, y equals to ax plus b. Okay, ax plus b. Why this is called a linear equation? This is called a linear equation because we have the power 1. Okay, पावर कितनी है? 1 है। x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, b है तो b के साथ क्या है? x की पावर 0, जो कि x की पावर 0 होता है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। मतलब किसी की भी पावर, अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 0 तो 1, 5 की पावर 0 1, 1 लाख की पावर 0 1। ओके, इसकी भी पावर 0 1, तो किसी की भी पावर 0। बट इन्फिनिटी की पावर जो 0 होती है वो अनडिफाइंड। ठीक, इन्फिनिटी की हमें खुद ही नहीं पता इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक, तो उसकी पावर 0 कैसे बताओगे? ठीक है, तो ये सब इंडिटर्मिनेंट्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, ऑल दीज आर दी इंडिटर्मिनेंट्स फॉर्म। ठीक, तो ये इंडिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक, तो जैसे कि ये है, इसकी पावर 0 तो 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्यों? x की पावर 1 है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट दी लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इसकी 1 होगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? x की 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 होगी। जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे, यानी इसके रूट कितने मिलेंगे? मुझे एक ही रूट मिलेगा इसका। ठीक, रूट क्या होता है और जीरोस क्या होते हैं? अगर मैं मान लेट सपोज कि एक ही डिग्री है, अगर मुझे वैल्यू मिलती है x इक्वल्स टू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अगर मैं x की जगह अल्फ़ा पुट करूँगा, ठीक, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक, अगर इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह अल्फ़ा पुट करता हूँ, अल्फ़ा इज़ द वन ऑफ द रूट, let's suppose alpha is the root or the 0 of this expression. If I am going to put the value of alpha in place of x, then what we get the value 0. Okay, so this is all about the linear equation. Second one is the quadratic polynomial. Okay, second one is the quadratic polynomial. Let's suppose ax square plus bx plus c. दिस इज द क्वाड्रेटिक। वाई इट इज क्वाड्रेटिक? ये क्वाड्रेटिक क्यों है?
यहाँ x की पावर 1 है, c के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब x की पावर 0 एंड x की पावर 0 इज 1, तो c इंटू 1 इज c। ओके, तो क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर देखते हैं ना, डिग्री कितनी है, x की डिग्री 2 है, ठीक, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और यहाँ पावर कितनी है 1, और यहाँ पावर कितनी है 0, तो अब मैक्सिमम पावर देखेंगे, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हुई। जो क्वाड्रेटिक होगी इक्वेशन वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने बताया अभी लास्ट में, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो इस तरह का पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ, अगर a लेस देन 0 हो तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c, ओके। इफ द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव then we have upward parabola and the value of a is negative then we have a downward parabola, okay। so y equals to bx plus c represent the parabolic equation, okay, expression, and equals to 0 कर दोगे तो equation, okay। a cubic polynomial, ठीक। हाँ, तो क्वाड्रेटिक में क्या था कि 2 रूट्स पॉसिबल थे। क्यों 2 रूट पॉसिबल थे? क्योंकि इसकी जो डिग्री थी वो 2 थी, डिग्री कितनी थी 2 थी, मैक्सिमम डिग्री 2 थी, इसलिए उसके मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल थे। 2 रूट्स का मतलब 2 जीरोस पॉसिबल थे, ठीक। अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ दी फर्स्ट वन इज अल्फा एंड द सेकंड वन इज बीटा, अगर मैं एक को अल्फा मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ, ठीक। अगर मैं लेट्स सपोज देख लो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके 2 रूट्स पॉसिबल होंगे, अल्फा और बीटा, कुछ भी मान लो, अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 2, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, बीटा की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी को छोड़ के, ठीक है, ठीक। माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं होगी, ठीक। तो x की जगह मैं अल्फा पुट करूँ, ठीक, और इस वाले x की जगह भी अल्फा पुट करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, ठीक। अगर मैं x की जगह मैं बीटा पुट करूँ, अब इसके वाले x की जगह भी मैं बीटा पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा 0, ओके। बट देयर इज वन थिंग, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, you are going to place alpha, okay, and then you are going to put beta in place of this x, okay। so this is totally wrong, ये क्या है, गलत है, ठीक है। इस तरीके से पुट नहीं करना कि एक x की जगह आपने अल्फा रख दिया, दूसरी की जगह बीटा रख दिया। अगर आप अल्फा रख रहे हो तो एक बार में पूरा अल्फा रखोगे, अगर बीटा रख रहे हो तो एक बार में पूरा बीटा रखोगे, ठीक है। इस तरीके से पुट नहीं करना, इस तरीके से पुट करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक एंड लेट्स सी दी थर्ड वन इज क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, y लिखा है या f ऑफ x लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। f ऑफ x है, अगर मैं लेट्स सपोज क्यूबिक इस तरह की कोई इक्वेशन लेता हूँ, ठीक, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, ओके, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। व्हाई इट इज द क्यूबिक इक्वेशन? क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है 3। डिग्री कैसे पता चलेगा? x की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ x की पावर 0 है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, ठीक। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, और जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे, ठीक। तो लेट्स सपोज वी हैव 3 रूट्स, ठीक है। x इक्वल्स टू अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, ओके। एनी वैल्यू मतलब यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ले लोगे, ठीक है। यहाँ मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा का एक वेरिएबल्स हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या है? ये वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स तो है, ये एक्स वेरिएबल है, ये सब कांस्टेंट है, बट आप कांस्टेंट की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। जैसे अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स दी अजम्पशन, ठीक, अजम्पशन है ये एक, ठीक है, कि अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी रखो कि ये हमें 0 दे दे। क्या 0 दे दे? y की वैल्यू 0 हो जाए या f ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाए। बीटा की कोई ऐसी एक वैल्यू लो, ठीक है, ये वैल्यू, ये पूरा जो लिखा है ये 0 हो जाए। गामा की वैल्यू कुछ भी ऐसी लो
कि y या एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन आया तो अल्फ़ा बीटा गामा की अपने मन से 2 4 5 6 कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक, तो वो क्वेश्चन जब करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ले सकते हो। ठीक, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें मान लो कि मैंने अज्यूम किया कि मैंने अज्यूम किया। ठीक है, वर्ड दोबारा से सुनना, अज्यूम किया, मैं बोल रहा हूँ अजम्पशन की बात कर रहा हूँ। मैंने अज्यूम किया कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और 2 रखते ही 2 किसकी जगह रखेंगे, एक्स की जगह। ठीक, ये जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बीटा की वैल्यू अज्यूम किया मैंने 5 है, 5 रखते ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। गामा की वैल्यू 10 है तो एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा 10 रखते ही। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ओके, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन वी हैव अ पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इफ द वैल्यू ऑफ a इज़ नेगेटिव देन वी हैव अ पैराबोला इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यही दिया हुआ है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज भी आपको मैंने बता दिए। p ऑफ x की जगह p ऑफ q क्यों लिखा है, देखो लेट सपोज अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, y को मैं f ऑफ x लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, ax प्लस बी। ठीक है, x की जगह मैं मान लेता हूँ कोई भी वैल्यू रखता हूँ अल्फ़ा बीटा। अब मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ कि अल्फ़ा इसका क्या है, एक ज़ीरोज़ है। मतलब अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, अल्फ़ा। ओके, ठीक, तो a इंटू अल्फ़ा, जैसे ही मैं अल्फ़ा रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 0 के बराबर। ठीक, तो यही बता रहा है कि x है तो k क्या है, p भी ले सकते हैं आप, f भी ले लो आप, g भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। p ऑफ x का मतलब वही है f ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि x के टर्म्स में है। ठीक, तो f ऑफ x का भी मतलब यही होता है, p ऑफ x का भी मतलब यही है, g ऑफ x का भी मतलब यही है, h ऑफ x का भी मतलब यही है। ठीक है, सबका मतलब यही है। ठीक, तो अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन रिप्रेजेंट like this, okay, g of x, h of x, p of x, k of x, okay। तो इसका मतलब यही है कि k की आप कोई भी वैल्यू रखो तो वो ये जो है 0 के बराबर हो जाए। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर वन। और ये आपको बता दिया था, इफ a इज ग्रेटर देन 0 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव अ पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन, इफ द वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव देन वी हैव अ पैराबोला इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, so this is really very important, you have to learn this one, you have to learn this concept। okay, ठीक, so let's suppose we have a parabolic equation p of x, you can take f of x, h of x and g of x। I am taking p of x। okay, तो मैंने p लिया है। ठीक, क्योंकि जनरली लोग f ऑफ x ले लेते हैं, g ऑफ x, h ऑफ x ले लेते हैं, मैंने p ऑफ x लिया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि क्या है, x के टर्म्स में है। तो दिस इज़ द फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन है जो कि क्या है, x के टर्म्स में लिखा गया है, मतलब x इसमें इन्वॉल्व है। ये कोई पूरा फंक्शन है, दिस इज़ द कंप्लीट फंक्शन। ये क्या है, कंप्लीट फंक्शन है जिसमें x इन्वॉल्व है, इसका मतलब यही होता है। ठीक, तो ये रिप्रेजेंट यही करता है, p ऑफ x ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास कोई फंक्शन है जिसमें x इन्वॉल्व है। तो ये कोई पूरा फंक्शन है जिसमें x इन्वॉल्व है। ठीक, ठीक, अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं, सम ऑफ रूट्स क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ये दे देगा और पूछेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो मैंने मान लेता हूं कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, x की पावर 2, x की पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, द मैक्सिमम डिग्री इज 2 एंड डिग्री रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जीरोस और द नंबर ऑफ रूट्स। तो वी हैव 2 रूट्स, द फर्स्ट वन इज अल्फा एंड द सेकंड वन इज बीटा। So the sum of the roots alpha plus beta is minus b upon a, minus b. The coefficient of x is b. Okay, so this is minus b and the coefficient of x square is a. So minus b upon a. Okay, minus का coefficient of x upon the coefficient of x square. You have to learn this. Okay, and what about the product of the roots? Alpha into beta. This is the coefficient constant term. The constant term is c. वाई दिस इज कॉन्स्टेंट बिकॉज कि यहाँ पे x का कोई भी टर्म, x का कोई भी यहाँ पे x नहीं है इसके साथ। ओके, वेरिएबल नहीं है, यहाँ b के साथ वेरिएबल था, a के साथ v वेरिएबल था, इसलिए c कांस्टेंट है। c कांस्टेंट है क्यों, क्योंकि इसके पास x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है,
1 होता है, 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो c इंटू 1 क्या है, कांस्टेंट आया, ठीक। तो इतना समझ लो, बस x नहीं लिखा तो यहाँ क्या है, c इज द कांस्टेंट, ओके। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा and alpha into beta is equals to the constant term upon the coefficient of x square, and the sum of the root is equals to the minus of the coefficient of x upon the coefficient of x square, which is minus b upon a, okay. So it's really very important, you have to learn this, okay. Note, and this is also really very important, these 2 points, okay. लेट्स सपोज, ये मान लो कि अगर मेरे पास क्या अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, एंड आई नीड टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, पी ऑफ एक्स, यू कैन टेक वाई इन प्लेस ऑफ पी ऑफ एक्स, और यू कैन टेक एफ ऑफ एक्स, यू कैन टेक जी ऑफ एक्स, और यू कैन, जनरली वी आर गोइंग टू टेक वाई, ओके, इन प्लेस ऑफ पी ऑफ एक्स, ओके। तो ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो अगर मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अगर मुझे इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक, और मुझे इसकी वैल्यू गिवन है, तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकता हूँ, ठीक। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके। यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, ओके, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके। यू कैन रिप्रेजेंट it like this, you can note this. This is the representation. This is the representation of a quadratic polynomial, okay. ये quadratic polynomial का representation है, x square minus sum. S represent the sum. S represent the sum. ये sum represent कर रहा है, and P represent the product. P represent the product. Okay. Sum किसका? Zeros का. Zeros बोल दो या roots बोल दो. प्रोडक्ट किसका? जीरोज और रूट्स का, ठीक है। तो ये एक हमारी जनरल एक्सप्रेशन है, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम ऑफ द रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा, एंड पी रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज अल्फा इंटू बीटा. सो the value of, so the y is equals to, we have a quadratic equation x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, okay. तो इस तरीके से आपको लिखना, देखो सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके. देख लो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स और द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके. तो हम इससे हम क्या लिख सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बना सकते हैं, ठीक है, ठीक. सो दिस वन वाज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, and the next one is the cubic polynomial. Next one is the cubic polynomial. So we have a cubic polynomial like this. You can take p of x is equals to, you can take y, you can take g of x, you can take anything, okay, in terms of x. So ax cube plus bx square plus cx plus d. तो इसके maximum roots कितने होंगे? 3, alpha, beta and gamma, okay. So the sum of the roots is, you have to learn that, you have to learn this one, okay. The sum of the roots alpha plus beta plus gamma is minus का b upon a, okay. Minus का b upon a, minus का b means minus का coefficient of x square upon the coefficient of x cube, okay. A is the coefficient of x cube, okay. So alpha plus beta plus gamma is equals to minus का b upon a, and the products of the root is alpha, beta and gamma is minus का constant term upon the coefficient of x cube, okay. What is the constant term? The constant term is d. So minus का d upon the coefficient of x cube. What is the value of coefficient of x cube? The value of the coefficient of x cube is a. Okay, तो minus का d upon a. This is the product of the roots, and this is the sum of the product of the roots. Sum, ध्यान से सुनना, sum of the product of the roots. Okay, मतलब products किया हमने roots का और उनका sum कर दिया, ठीक है. तो product ही तो किया है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और बीच में प्लस साइन लगा दिया, इसका मतलब सम कर दिया. तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके. तो ये किसके बराबर होता है? c अपॉन a के, ओके. देखो इसके नीचे भी a आया, इसके नीचे भी a आया, इसके नीचे भी a आया है, ठीक है. सो दिस इज c अपॉन a, द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ओके. सो यू हैव टू लर्न दैट. एंड लेट्स सपोज इफ यू वांट टू राइट
the value of alpha plus beta plus gamma is given, and the value of the sum of the product of the roots is given, and the value of the product of the roots is given. ओके, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा इज गिवन, ओके, और मुझे क्या है, अल्फा बीटा और गामा का जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। और मुझसे बोला जा रहा है कि मुझे क्या करना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है, क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से लिखूँगा, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पावर एक कम कर देंगे, एक्स क्यूब है फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का, ठीक है, ये माइनस आएगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज माइनस, ओके, ठीक, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यानी ये वाला, ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, ओके, ठीक। और साथ में पावर कम करते जाएंगे, एक्स क्यूब है फिर एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है, और माइनस का अल्फा बीटा एंड गामा, ओके, माइनस का अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक। तो ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है, इंग्लिश में लिखा है, सम ऑफ द जीरोस आ जाएगा, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा। ये जीरोस का मतलब क्या है, रूट्स, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट का सम, ये प्रोडक्ट का सम ही तो है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये प्रोडक्ट है और उनका सम, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, ये उसको जो भी है वो यहाँ पुट कर देंगे, और दी माइनस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, देन यू विल गेट दी cubic polynomial. So this is you have to learn this. This is really very important. So let's end this session, and this is our YouTube channel. You have to subscribe it, share it and like it, and don't forget to hit the bell icon in order to get the latest update. Okay, so thank you and bye.